में कुछ बताएं। मेरा नाम शशिकांत मंडल है। बस ठीक है, मैंने आवाज एकदम परफेक्ट है आपकी। आप कैमरा ऑन रखिए अपना। ओके, हाँ, परफेक्ट है। अनुज जी। सर प्रणाम सर। हाँ, आप हाँ स्टार्ट करिए। स्टार्ट। सर थैंक यू सर। शशिकांत अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन है सर। हाँ बस ठीक है, ओके। चलिए, आप अपने मीडियम क्या है, आप किस मीडियम में देना चाहेंगे? बहुत मीडियम, इंग्लिश भी है सर, हिंदी भी है सर। नहीं, आप क्या प्रेफर करेंगे, इंग्लिश और हिंदी? वहां पे पेपर तो कैसे देंगे? इंग्लिश। मेंस किस में दिया था आपने? मेंस तो इंग्लिश में दिया था। तो इंग्लिश में। चलिए ठीक है। तो आप अपने बारे में परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए अपने बारे में। सर, माय नेम इज शशिकांत मंडल। आई एम फ्रॉम भागलपुर, बिहार। आई हैव डन माय LLB from Tilka Manji Bhagalpur University, Bhagalpur in 2012. Since 2016, I am in Indian Railway at the post of Senior Train Manager, Goods. Okay. So you have completed your LLB in 2012, Yes, sir. and after that you are serving in a railway Yes, sir. since 2016, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mischief by fire. Yes, If sir. is mischief by fires, if in a railway, is there any provision to Indian Penal Code, or it is exclusively in a Railway Act? It is also in Railway Act, and it is also in IPC. In which section of the IPC? It is in section 103, UP Amendment Act 5. 103. Yes, sir. What say 103? Private private defense regarding property. Private defense regarding Property. So under the 103 of the Indian Penal Code, you can cause the death. Yes, sir. Okay. When the offense is relating to the conditions which is given under the 103. So what are the Yes. conditions in which you can cause the death when the offense relating to 103? What are the conditions? First one is robbery. Second one is Second one is sorry sir, याद नहीं आई. Not, I'm unable to recall it. so firstly, in my first questions, you have answered already the mischief by fire. So in this condition, you can also cause a death when the offense against to property. Okay. So right of private defense is a defensive right, not a punitive right. Are you agree? Yes, sir. How? How you can say this? The right of private defense is only defensive right.
In this right, in this type of right, we can save ourselves. Only yourself or any other person also? Any other person also. So you are telling that ourselves. Okay, just leave it. What is a common intention? Common intention is under section 34 of Indian Penal Code, in which the criminals, the persons were set their minds before committing a crime to what he has to do in their criminal activity. If you are unable to speak in English, you may also speak in Hindi. And I think you would be more comfortable in Hindi. हिंदी में आप बोल सकते हैं. अब फिर से बताइए. अपराध के समय या अपराध के समय से पहले व्यक्तियों के अपराध करने की जो योजना बनाई जाती है, उनमें उन लोगों का जो आपसी विचार होता है, आपसे तालमेल होता है, वो कॉमन इंटेंशन है कि उन लोगों के मन में कि जिस कार्य को करना है उसके लिए उन लोगों का एक खास मोटो होता है, लक्ष्य. ये मोटो क्या होता है? लॉ में मोटो का क्या मतलब है? लॉ में मोटो का कोई मतलब नहीं है. मोटो वर्ड हमने नहीं पढ़ा है, कहीं मोटिव पढ़ा है. व्हाट इज अ मोटिव? इंडियन एविडेंस एक्ट में मोटिव को बताया गया. क्या है मोटिव? मोटिव सेक्शन 7 में है, इंडियन सेक्शन 7 में है मोटिव के बारे में. सेक्शन 8 में है. मोटिव बताएं क्या है मोटिव? किसको कहेंगे? व्यक्ति जो कुछ करना चाह रहा है, उसके अंदर जो इच्छा, जिस काम को करने की इच्छा है, वही उसका मोटिव है. इच्छा और मोटिव, यानी डिजायर एंड मोटिव दोनों एक ही चीज है? चलिए मुझे बताइए, व्हाट इज अ कन्फेशन? Confession is a type of admission in which accused person tells something about his crime टू होम? to a magistrate and to some other person also. Okay, just give me an illustration, just give me an example what you are saying, so that I am able to understand whether. Confession is of two types: judicial confession and extrajudicial confession. In Okay. judicial confession, the accused person confess in front of magistrate in a court, and in extrajudicial confession is with someone also, just like as his friends, doctors, etc. Hmm. And who is a compelled witness?
कंपेल्ड विटनेस कौन होते हैं? Sorry, sir. हैव यू हर्ड अबाउट द हॉस्टाइल विटनेस? Yes, sir. जो विटनेस अपने बात से दोबारा मुकर जाता है उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं. जो अपने जैसे कोई विटनेस during the trial says something and after some days he says some another thing. Yeah, he says that he has not saying such thing. Then such witness is known as hostile witness. suppose I am a witness, I am giving the evidence, and in a subsequent proceeding I have changed by the statement, so I am a hostile witness as Yes, per you, according Yes, to you. Is there any provision relating to the hostile witness under the Indian Evidence Act? sorry, sir. So, is there any provision relating to the limitations of the cognizance under the CRPC? Pardon, sir. Is there any provision relating to the limitation of cognizance, taking the cognizance under the CRPC? Sorry, sir. And what is the difference between information and complaint? Information may be given to police officer or to any person, but complaint generally before the magistrate. So information cannot be given to the magistrate, according to you. I have told information may be given to police officer and magistrate both, and So someone what is also. what is the difference? I am asking to you. Complaint is generally for non-cognizable offense, but Where it is information written, is usually for complaint is cognizable offense. where it is written, the complaint is always for the cognizable or non-cognizable. Is there any difference? And as far as my knowledge is concerned, complaint made to the magistrate, either it is a Yes, sir. cognizable or non-cognizable. Yes, sir. Then why are you saying so? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से और है. अभी तीनों जो नए बिल आए हैं उनके तीनों के नाम बता दीजिए आप. आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस, तीनों के नाम. आईपीसी का नाम है नागरिक सुरक्षा अधिनियम. नो, एविडेंस का भारतीय साक्ष्य अधिनियम. नहीं आप गलत बता रहे हैं, सही बताइए उसको, पहले वाले. नागरिक सुरक्षा संहिता. ये आईपीसी है. जी सर. अच्छा, दूसरा. एविडेंस एक्ट का तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है. और पहले वाले का क्या बोला था आपने? एक का मैं मिस कर रहा हूँ, दो का ये मुझे याद आ रहा है. चलिए, ओके शशिकांत, थैंक यू सर. Okay. Sir, सर प्रणाम सर. शशिकांत जी, आप भागलपुर के रहने वाले हैं? यस सर. आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है. भागलपुर का जो कोर्ट का सेटअप है, सिविल और क्रिमिनल, वो ऊपर से लेकर नीचे तक के जरा हायरार्की को समझाइए तो. तो मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं. उसके नीचे
असिस्टेंट सेशन जज का कोर्ट है एसीजीएम का, उनके नीचे सीजेएम का कोर्ट है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का कोर्ट है। हम्म, इसके अलावा पोक्सो कोर्ट SC ST का पोक्सो कोर्ट अलग है सर। ठीक ठीक है, वो तो ठीक, हम समझ गए। जमीन का जो विवाद होता है वो सिविल मैटर है कि क्रिमिनल मैटर है? सिविल मैटर है सर। अगर वो जमीन तक ही सीमित है तो ना, जी सर। खोपड़ी फोड़ोवर हो गया तब फिर लड़ाई झगड़ा हो गया तो भाई चीज क्रिमिनल मैटर हो जाता है, नहीं? जी सर। सिविल मैटर के ट्रायल में और क्रिमिनल मैटर के ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है? एसेंशियल डिफरेंस क्या है? सिविल मैटर का ट्रायल बड़ा स्लो चलता है सर, क्रिमिनल मैटर का ट्रायल बड़ा फास्ट चलता है। ये एसेंशियल अंतर है उसका कि कोई कितना भी कोशिश कर ले सिविल मैटर स्लो ही चलेगा, ऐसा है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता? एसेंशियल का मतलब क्या हो कि जो है ही है, वो डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। ये तेज और स्लो का डिफरेंस थोड़े पूछ रहे हैं। वो तो कोई अच्छा जा जाएगा, कोई पीछे पड़ जाएगा तो उसको जल्दी कर देगा, और क्रिमिनल भी कौन सा बहुत जल्दी हो जाता है? कितना लोग घूम रहा है जमानत पे 20 साल से, नहीं? तो वो तो मुख्य अंतर मतलब वो नहीं हुआ। दोनों को ट्रायल में एविडेंस एविडेंस के पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस है, चलिए हम और नैरो डाउन कर देते हैं। साक्ष्यों की परिपाटी पर जी सर, दोनों में समझ क्या रहे हैं। अंतर है? उसके बर्डन ऑफ प्रूफ सुने, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सुने हैं? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नहीं सुने सर। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए, एक सिचुएशन में जरा देखिए कि लॉ कौन सा लगेगा। वही कल वाला एक प्रश्न हुआ था, उसको पूरा करते हैं आज। कि किसी का एक गाड़ी चला रहा था रोड पे आदमी, और एक दूसरी गाड़ी वाले ने उसको आके ठोक दिया। खूब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? गिर गया, उसको जो है चोट चपेट लग गया, एकदम अचेतन जैसी अवस्था में दिख रहा था, घायल हो गया, एकदम मरणासन्न हो गया। और ये जिसने जो लड़ाया था, जिससे लड़ा था, वो जो है फिर उसके बाद उसका मोबाइल और पर्स भी लेके कट लिया। तो जो लड़ाया उसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज लगेगा? कल्पेबल होमिसाइड का लगेगा सर। ओके। उसके बाद मिस हाँ, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं ना आप, जी सर। है ना? ये बताइए सोच के कि इस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी का 204 भी लग सकता है कि नहीं, अगर हमको ठीक से याद आ रहा है तो। क्या है आईपीसी का 204, याद है कुछ आपको? नहीं याद है सर। हमको ऐसा याद आता है, अनुज सर बाकी कंफर्म करेंगे, हमको लगता है एविडेंस को नष्ट करने का जो इल्जाम लगता है वो उसी से संबंधित कुछ है। तो ये जो वहां की चीजें, जो क्राइम सीन कोई आदमी फिर डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी चार्ज लग सकता है कि नहीं इसके ऊपर? आपका क्या विचार है इस पर? क्राइम सीन को तो नहीं, वो तो सिर्फ मोबाइल वाले गया ना सर, तो चोरी का टाइप का हो गया ना क्लास। मोबाइलवा में अगर रिकॉर्ड हो रहा हो तो कि कौन ठोका, कैसे ठोका, मोबाइलवा तब तो ऐसे हो सकता जेब में रखे हुए हो, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा हो, मोबाइल से उसका आइडेंटिटी, मान लीजिए एक्सीडेंट कर दिया है और उसके अलावा उस समय कोई साक्ष्य नहीं है उसका आइडेंटिटी का, तो पता कैसे लगाएगी पुलिस? समस्या हो जाएगी ना। साइकिल से मान लीजिए कोई चल रहा है, एक आदमी साइकिल से चल रहा है, उसको आके कोई ठोक गया। आदमी है वो जो है कश्मीर का, और ठोक गया वो है जो कर्नाटक में आके, क्योंकि उसका घूमने का मन था कि हम साइकिल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बहुत सोचना पड़ता है ना लॉ वाले को। जी। तो भाई उसका आइडेंटिटी आप खत्म कर दिए कि लाश का शनाख्त ही नहीं होगा, तो फिर मुकदमा कौन करेगा हमारे ऊपर? समझे ना मेरी बात आप? जी सर। खाली खाली क्रिमिनल में ऐसे इस तरह से तो नैरो हो जाएगा व्यू।
एपीओ का काम क्या है? ये देखना कि कितने अधिक से अधिक कानूनों का उल्लंघन हुआ है ना? तो सब दिशा में सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 204 लग ही जाएगा, हम कह रहे हैं कि उस दिशा में भी अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सचेत रखना चाहिए कि कोई और चार्ज तो नहीं लग जाएगा इस पे, और लग सकता है कि नहीं, एविडेंस भी मिटा रहा है। हमें क्या मालूम कि किस लिए उसने मोबाइल उठाया, चोरी के दृष्टिकोण से या फिर उसकी आइडेंटिटी को दबाने के दृष्टिकोण से, है ना? तो बहुत सारा जी सर। चीज आता है, कम से कम हमको सोच अपनी खुली रखनी चाहिए। तो आपने कभी इस शब्द के बारे में सुना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज? सुना तो है सर। इसके विषय में पता नहीं है? नहीं सर। बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट सुना है आपने? ये भी सुना है सर। लेकिन इसके विषय में भी नहीं ज्ञात है अभी। नहीं, इसमें जैसे होता है कि जब कंफर्म हो जाता है कि ये एक्यूज जो एक्यूज है वही उसने ही क्राइम किया है। और ना कंफर्म हो पाए तब भी सजा दे सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों नहीं दे सकते? जब तक कंफर्म नहीं होंगे सजा कैसे दे देंगे सर? जब तक कंफर्म नहीं होंगे सजा कैसे दे देंगे? तो कब जज को मानना चाहिए कि कंफर्म हो गया? जब वो मुर्दा आदमी जिंदा होके वापस बयान दे दे कि इसी ने हमको मारा था, तब। सवाल लेने का नहीं सर, हाँ, फिर कैसे कंफर्म होगा बताइए? बड़े भला करें। कंफर्म होने के तो बहुत सारे विटनेस हाँ, होंगे। जैसे एक दो उदाहरण दीजिए ना, एक दो उदाहरण दीजिए कंफर्म होने का। अगल बगल में तो कुछ लोग तो होंगे ना वहाँ पे ना, नहीं, CCTV आई कैमरे विटनेस, होगा। हाँ नहीं, आई विटनेस नहीं, आई विटनेस झूठ बोल रहा हो तो, पैसा लेके बोल रहा हो तो। क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ जा सकता है ऐसे मामलों में, इसीलिए कहा जाता है कि बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट, कि भाई मन में कोई डाउट न रह जाए तब सजा दे सकते हैं। कंफर्म तो कैसे हो? कोई कंफर्म हो सकता है कि इसी आदमी ने मर्डर किया था? सीसीटीवी का फुटेज हो और फॉरेंसिक्स बोल दे कि हाँ भाई यही आदमी था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तभी होगा ना भाई। तब भी मुश्किल नहीं है सर। बहुत। अब आजकल तो कौन किसका चेहरा लगवा के आ जाए, मिशन इम्पॉसिबल नहीं देखे हो? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कंफर्म होना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड लगाएगा कि भैया इतना हो जाएगा तो सजा दे देंगे, और वो जो इतना हो जाता है उसी को स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कहते हैं। आप लॉ किए हुए हैं ना आप तो, जी सर। ये तो महाराज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, बेसिक्स अपने ब्रशअप करने चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दो अलग अलग होता है, सिविल प्रोसीडिंग में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ना भाई। एक में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है और एक में बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट होता है। अच्छा, एक सिचुएशन बताइए कि जो है आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपना काम कर रहे हैं और आपके सामने कैसी सिचुएशन आ रही है कि जो है सामने के जो अभियोग पक्ष तो आप हो गए, जो डिफेंस है उसके तरफ से आपके जो है वो ब्रदर इन लॉ वही वकील है वहां पे। तो उसमें आप समझते हैं कि कुछ आपको करना या कहना चाहिए, या कैसे करेंगे, या इट इज ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वकील कौन है? हाँ, सामने वकील से क्या मतलब पड़ता है सर? हम अपना ड्यूटी करेंगे सर। एग्जैक्टली बाद में अगर कोई इल्जाम लगा दे कि इसीलिए अच्छे से इन्होंने नहीं प्रोसिक्यूशन का जिम्मेदारी निभाया क्योंकि सामने उनके ताला साहब थे वकील, और देखिए उसके बाद शाम को घर पे बैठ के जो है वो चाय पानी भी हुआ था, तब कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे महाराज? नहीं सर, वो फैमिली रिलेशनशिप है, ये अलग रिलेशनशिप, दोनों से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, जब कोई एपीओ हो जाता है तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या कंडक्ट रूल्स अप्लाई होते हैं क्या? तो हर नौकरी के होते हैं सर, इसके भी होंगे। सर्विस रूल्स। सभी नौकरी आप तो के अभी होते भी जॉब में है ना, शायद अभी भी जॉब रेलवे में या हैं। कहीं जॉब पे, तो जी सर, रेलवे उसी में। तरह एपीओ के लिए भी कुछ सर्विस रूल्स होते होंगे। जी सर। तो क्या ऐसे कुछ रूल्स है, या भी शायद नहीं जानते होंगे आप? ऐसे कुछ रूल्स है कि भाई आपका कोई रिश्तेदार या आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आप हट जाइए उस केस से, ऐसा कुछ होता है क्या? होते होंगे सर, मुझसे जानकारी नहीं है सर। अभी नहीं जानकारी थी। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट प्रमोशन आपका क्या होगा? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होंगे सर। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पर तो अपॉइंटमेंट ही होगा ना। सर हम पूछ रहे हैं प्रमोशन, ध्यान से सुनिए प्रश्न को।
कम से कम कोई आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं। उस नौकरी, जिस नौकरी के लिए आप आज इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, उसका पे स्केल के बारे में मालूम है? सर लेवल 9 की नौकरी है सर। लेवल 9, ओके। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, ये आप इसके साथ कोई और भी करियर का स्वप्न देख रहे हैं, या इसी नौकरी के बारे में सीरियस है? एक जॉब में तो आप ऑलरेडी हैं ही। जैसे मैं जुडिशियल ऑफिसर बनना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, अल्टीमेटली जुडिशियल ऑफिसर का आपका विजन है। ओके, वेरी गुड। आपको क्या लगता है, इन दोनों को कंपेयर करके 2-3 पॉइंट बताने का प्रयास कीजिए। एपीओ की नौकरी में और जुडिशियल ऑफिसर की नौकरी में मुख्य जो अंतर है वो क्या है? सैलरी वगैरह को छोड़ के प्रोफाइल का जो डिफरेंस है वो बताने का प्रयास कीजिए। एपीओ की नौकरी में सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स को ही हम हैंडल करेंगे, लेकिन जब जुडिशियल ऑफिसर बन जाएंगे तो हम सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर को देख पाएंगे। ओके, वेरी वेल, वेरी वेरी गुड। ये बताइए, भागलपुर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्या है? भगवान वासुपूजित जी का जैन का मंदिर है सर। ओके, वहां की सबसे फेमस इंडस्ट्री कौन सी रही है आपके जिले की? तो रेशम टेक्सटाइल थी सर, सिल्क टेक्सटाइल। यस, क्या खास बात वहां की मानी जाती है उस टेक्सटाइल की, उस तरह के रेशम कपड़े की? टेक्सटाइल 4 टाइप के धागे होते हैं सर, इरी, मूंगा, तस्सर। और ये तो तस्सर की जो होती है मुख्य रूप से वो भागलपुर में ही होती है। अभी जिलाधिकारी कौन है आपके वहां पे? ये तो नाम तो मुझे याद नहीं है सर। तो मैं फिलहाल उड़ीसा में पोस्टेड हूँ सर, उड़ीसा में भी जॉब कर रहा अच्छा, अभी आप उड़ीसा में, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई, जहाँ पोस्टेड है वहां के जिलाधिकारी कौन है? हूँ, वो भी नहीं याद है सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा रखना चाहिए एक कैंडिडेट को, थोड़ा सा तो नॉर्मल जो सिटीजन है उससे कम नहीं तो उससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, बल्कि, है ना? न्यूज़पेपर वगैरह खूब अच्छे से पढ़ते रहा करें, उससे आइडिया रहता है। थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स को ठीक कीजिए। और मेरा तो सुझाव यही है कि आपको वाकई ये हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जब अंग्रेजी में शुरुआत हुई, उसके बाद जब सर ने कहा कि आप हिंदी में बोलिए, तो आप विशुद्ध हिंदी का प्रयास करने लगे। नहीं, मेरा सुझाव है कि मिक्स बोलिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मिक्स बोलिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बोलिए। और बेसिक्स थोड़ा सा आपको और स्ट्रांग करने का प्रयास करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो हॉस्टाइल विटनेस हो गया, यही सब सबसे पहले आदमी यही पूछता ही है, जो बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक एक बार और कर लीजिए, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मेरी तरफ से सुझाव है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। मंडल जी, जी सर। नमस्कार। 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 ये कोई आदमी कोई क्राइम किया, सबसे पहले कार्रवाई क्या होगी? क्राइम करने के समय जो वहां पे जो व्यक्ति होंगे वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऐसा ऐसा क्राइम हो चुका है यहाँ पर। ऐसा होता है, लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिनके घर में अगर मान ली हो गई तो मेरे घर में, जैसे मेरे घर में होती है और कुछ क्राइम, तो मैं तो इन्फॉर्मेशन देने तो जाऊंगा ही ना सर। तो आप देंगे ना, आप बोले वहां जो लोग होंगे वो देंगे, तो घर हाँ, वाले देंगे ना, घर वाले देंगे। क्राइम तो किसी घर पे होगी ना सर, घर में अगर होगी तो घर वाले जाएंगे, और नहीं तो बाहर क्राइम जाना सड़क होंगे। क्राइम सड़क पे हो सकता है, आप सड़क पे जा रहे हो, वहां आपको मार दिया गया। हाँ, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस सब में नहीं रहते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसमें प्रोएक्टिव होते हैं, सोशल टाइप के पर्सन होते हैं, वो जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जी सर। उसके बाद क्या होगा? उसके पुलिस पुलिस आएगी, उसको देखेगी मैटर को, क्या मैटर है नहीं है। उसके बाद उसका पुलिस एक्यूज को खोजेगी, कौन एक्यूज है, उसको पता लगाएगी। अगर वो कॉग्निजेबल टाइप का ऑफेंस होगा तो अरेस्ट करेगी, कॉग्निजेबल नहीं होगी तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी, तब अरेस्ट करेगी उसको। इंफॉर्मेशन दिया, पुलिस आएगी, पुलिस एक्यूज को ढूंढेगी, अरेस्ट करेगी। जी सर। कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी। हाँ, लिखा पढ़ी हो गया, एफआईआर लिखी जाएगी सर। तो आपने उसको बताया। नहीं सर। तो मान लो कोई घटना घटी, तो सबसे पहला काम क्या होगा? एफआईआर लॉन्च करना होगा। जी सर।
एफआईआर में क्या होता है? एफआईआर है क्या? किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो पहली सूचना नजदीकी थाना को दी जाती है उसे एफआईआर कहते हैं। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल में होता है, नॉन कॉग्निजेबल पे नहीं होता है? जनरली नहीं होता है सर। जनरली नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति होता है सर, जो व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ उसको तो पता नहीं रहता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो तो पुलिस के पास अगर जाएंगे तो पुलिस उसको सजेस्ट करेंगे कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां उसको कंप्लेंट दाखिल कीजिए। एफआईआर के साथ मजिस्ट्रेट कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, जैसे किसी व्यक्ति को जैसे कोई अपराध होता है, किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है कि वो जो अपराध उसके साथ हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो पुलिस के पास जाती है, एक, पुलिस उससे बोलती है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं। हाँ, पुलिस ऐसा कहती है कि आप जाए मजिस्ट्रेट के पास? हाँ, वो बोलती है ये तो कॉग्निजेबल है नहीं, इसके लिए आप तो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कीजिए। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको पुलिस डील करती है और नॉन कॉग्निजेबल को मजिस्ट्रेट हैंडल करता है, ये आप कह रहे हैं? जी सर। एफआईआर है क्या, ये बताइए मेरे पास। एफआईआर एक दस्तावेज है जो पुलिस स्टेशन में रहती है, जिसमें पुलिस के जो भारत तक अधिकारी होते हैं वो उसमें जो किसी भी इंफॉर्मेंट के द्वारा दी गई सूचना को लिखते हैं। फिर से बताइए, आप सोच बताइए। एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन में एक डायरी होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सूचना दी जाती है उसमें पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ खुद या उनके द्वारा निर्देशित कोई व्यक्ति उसको लिखित रूप में लिखते हैं। ओके, ये तो आपने बताया एफआईआर के बारे में, एक कहते हैं फैक्चुअल पार्ट। एफआईआर होता क्या है ये बताइए। पुलिस डायरी होता है, ठीक है, एफआईआर क्या होता है? सोचिए, 2 मिनट सोचिए, सोचिए। पुलिस डायरी आपने बता दी, ठीक है, पुलिस के यहाँ एक डायरी होती है, उसके आगे? उसे पुलिस अपने जो उसके जुडिक्शन के क्षेत्र में जो घटनाएं होती है उसको उसमें लिखा जाता है। A written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense। ठीक है? जी सर। जो आपने बताया जो मैं बता रहा हूं दोनों सेम चीज है? जी सर। सेम है? जी। ये एफआईआर क्यों कहा जाता है? तो किसी कमीशन ने पहली बार इसको ही लिखा जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पहली बार वही सूचना दी जाती है, इसलिए इसको एफआईआर कहा जाता है। जब एफआईआर फाइल होती है तो क्या होता है फिर? एफआईआर फाइल हो गई, अब क्या होगा? तो इन्वेस्टिगेशन होती है सर, उसके बाद कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस के पास चॉइस है इन्वेस्टिगेशन करने का क्या नहीं करने का? जी सर। हाँ, जी पुलिस सर को है। इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा, या पुलिस के पास चॉइस है इन्वेस्टिगेशन करे या ना करे? नहीं सर, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो करना ही होगा। मतलब पुलिस लीगली बाउंड है? जी सर। अच्छा, जो एफआईआर हो गई, उस एफआईआर में जितना लिखा है उतना इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाहर भी होगा? बात भी होगी सर, उसको जो जो उससे रिलेटेड जो भी टर्म लगेगी वो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कोई मामला एफआईआर में दर्ज नहीं है, क्या उस मामले पर आपने एक एफआईआर लॉन्च किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, मामला कोर्ट में गया, क्या कोर्ट किसी नए मामले को देख सकती जो एफआईआर में लिखा ना हो? कोर्ट में जब इंक्वायरी चलेगी सर, तो इंक्वायरी में अगर उसको ऐसा कुछ नया चीज कुछ उभर के सामने आता है तो उसको उसमें ऐड किया जाएगा सर। क्या कोर्ट इंक्वायरी करती है?
हाँ, कोर्ट इंक्वायरी करती है सर। किस सेक्शन में? सेक्शन तो मुझे याद नहीं आ रही है। कोर्ट इंक्वायरी करती है या कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट पे अपना निर्णय देती है? नहीं, कोर्ट कोर्ट इंक्वायरी इंक्वायरी करती है। खुद करती है? हम खुद अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा करवाती है। कोर्ट का सबऑर्डिनेट अफसर कौन है? डाइंग डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट लेने के बाद उस व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है, और उस डाइंग डिक्लेरेशन में उस व्यक्ति के मौत से रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन दी रहती है। सवाल क्या था? डाइंग डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन ही क्यों कहते हैं? आंसर क्या दिया आपने? कि डाइंग डिक्लेरेशन में जिस व्यक्ति के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है, उनकी मौत हो जाती है और उनके मौत से संबंधित ही जानकारी उसमें लिखी रहती है कि किन कारणों से उनकी मौत हुई थी। डाइंग डिक्लेरेशन को इतना ज्यादा क्यों कहा जाता है? इतना ज्यादा उसके बारे में क्यों मतलब उसको इतना एविडेंस क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरते वक्त कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। डाइंग डिक्लेरेशन को लैटिन में क्या कहते हैं? नेमो मोरिटर, ऐसे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। या नहीं आ रहा? डेथ का लैटिन में क्या 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 नेम है? मोरिटर ही है सर। क्या होता है? मॉरिटर। जी सर। थोड़ा क्या है ना, दो तीन मैं सलाह दूंगा आपको। जी एक तो आप शब्दों का प्रयोग संभाल के करिए। जैसे एफआईआर में आपने मजिस्ट्रेट का इस्तेमाल कर लिया, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए आप। जी सर। दूसरा, आप बोलते समय कई बार आप में एरोगेंस आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये टेप चलेगा, रिकॉर्ड दिखेगा, कई बार एरोगेंस आ जाता है, एग्रेशन दिखता है। ये मेरी सलाह हमेशा होती है हम लोगों की, सारे एस्पायरेंट को, कि आपका हम्बलनेस आना चाहिए, आपका एग्रेशन और एरोगेंस नहीं आना चाहिए। एफआईआर पे आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो। एक जो प्रोसिक्यूशन का अफसर है उसको एफआईआर पे क्लैरिटी न हो, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आप टेप चलाइएगा और एफआईआर से कंपेयर करिएगा, एफआईआर में आपने जो कहा वो कैसे। दूसरा बोला कोर्ट इंक्वायरी करती है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से। कोर्ट पास कौन सा अफसर होता है? कोर्ट को अगर इंक्वायरी करनी होती है तो कोर्ट डायरेक्शन देता है, राज्य को डायरेक्शन देगा। होता क्या है, राज्य ने केस फाइल किया, ठीक है ना, क्रिमिनल केस में राज्य ने केस फाइल किया, किसके खिलाफ फाइल करता है? इंडिविजुअल के खिलाफ। उसने कोर्ट ने अपनी चीज पढ़ी। अब कोर्ट लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो कोर्ट तो राज्य को बोलेगा ना, कोर्ट थोड़ी करेगा इंक्वायरी। और कोर्ट के पास सबऑर्डिनेट अफसर होते कहाँ है? कोर्ट इंक्वायरी जनरेट करता नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस। कोर्ट इंक्वायरी जनरेट कर देता है कि भाई इन चीजों पर इंक्वायरी करो, आप हमको इंक्वायरी का तथ्य दो। कोर्ट थोड़ी थोड़ी करता है इंक्वायरी। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। आपकी बोलने की पेस ठीक है, आप ठीक बोलते हो, सौर्य की सलाह ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलो, आप किसी भी हालत पे अंग्रेजी मत बोलो, जी सर। दोनों को। और किसी बात में हिंदी मत बोलो। आपसे वो कोई सवाल नहीं करेंगे, आप हिंदी से बोलो, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बोला शुरू कर दो। जहां आप बोलोगे आप हिंदी में कंफर्टेबल हिंदी बोल दो, अंग्रेजी आप बिल्कुल उनसे पूछो भी मत कि हम किस भाषा में बोल रहे हो, आप बोलते जाओ। बेसिक नॉलेज आप लोग ठीक कर लो। लॉ वाले इशू पे अनुसर राय देंगे। अनुसर लॉ के इनके आंसर कैसे थे? सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनुज सर। सर जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर, जैसे सामने प्राइमा फेसी ही लग रहा है कि बहुत बेसिक चीजों पे जानकारी नहीं है। मैं शशिकांत आपको बताऊंगा, सर ने एफआईआर के बारे में
बात किया तो आपने कहा नजदीकी थाने में सूचना दी जाएगी, जबकि ऐसा एफआईआर के लिए कुछ नहीं है, जुरिस्डिक्शनल बार है ही नहीं है, कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपने कहा कि जनरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर एफआईआर नहीं होती है, इसका मतलब होती है कभी कभी, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना। सर आपसे पूछ रहे हैं कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अंतर बताइए, तो आपने कहा कि बड़ा इलॉजिकल आंसर आपने करा कि वो स्लो होता है और वो जो है फास्ट होता है। ऐसा कहाँ है यार, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 15 साल लग जाता है सेशन कोर्ट निकलने में। तो आप ये जो आप बताए बहुत ही इलॉजिकल आंसर था। फिर सर ने आपसे पूछा कि आप सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की बताइए, तो आप सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की बता करके शांत हो गए। आपने सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, एडीजे आप कहीं नाम ही नहीं लिए, आप सिर्फ क्लास 1 क्लास 2 की बात कर रहे थे। फिर इसी तरीके से मैं जो आपसे पूछ रहा था हॉस्टाइल विटनेस के बारे में, आप कह रहे हैं कि बाद में स्टेटमेंट चेंज कर देता है, जबकि वो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो भाई सहमत नहीं हूं। आप ला पे आप कर क्लैरिटी के हिसाब से बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको। बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो पूछी गई आपसे। कोर्ट की हायरार्की पूछी जा रही है, हॉस्टाइल विटनेस पूछा जा रहा है, सर ने एफआईआर के बारे में पूछा, इंफॉर्मेशन के बारे में आप मुझसे ही कह रहे थे कि कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में से किसी एक का। ये सब अंतर है, ये आप पढ़िए, इनके बारे में अध्ययन कर लीजिए। आपका अभी जो जितना भी टाइम है, बेसिक टाइम आपके पास 2-4 दिन का, ये 5 दिन सर बार बार कह रहे हैं कि एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। और आप 3 अमेंडमेंट हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट, और मैं डे 1 से कह रहा हूं, सर कहते हैं आपसे कि आप इन चीजों को पढ़ लीजिए। आप लोग सिर्फ नाम नहीं बता पा रहे हैं यार, और अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने जा रहे हैं आप, और 3 इतना मेजर चेंज है और उसी लॉ में है जिससे आपको अभी आगे कैरी करना है कैरियर आपका। और फिर कुछ चीजें जैसे सर ने एक चीज एरोगेंस वाला बताया, वो आप ध्यान दीजिएगा, अभी सर बताएंगे आपको, सॉरी सर बता देंगे इनके बारे में। तो वो चीजें मुझे भी झलक रही हैं, आपको सर ने भी वो आपको बता ही दिया है, भी सर भी बताएंगे आपको। आप जुडिशियल ऑफिसर भी बनना चाहते हैं, और आप देख लीजिए कि जब भी बोर्ड के मेंबर होते हैं ना, आपसे ऐसे ही आसान तरीके से बात करके आपसे निकलवा लेंगे और आप उन्हीं में होकर के आंसर कर जाएंगे आप। बस यही है सर, अब बाकी सर सॉरी सर बता देंगे सर आपको जो। तो ठीक भैया, आप क्या कहें, आप जो है अपना वही जो दुखी आती है मेडजी वो आप पढ़ लो। बाकी आपका इंटरव्यू ठीक रहा, सर ने भी बताया। सर को कुछ है बचा? यस सर, मैं तो बताना चाह रहा हूँ सर कि तुम भाई करो शशिकांत भाई, एविडेंस एक्ट ना ठीक से पढ़ लो। एविडेंस एक्ट में जब कोई नहीं बता पाता है ना, तो इंप्रेशन थोड़ा ज्यादा खराब होता है। तो एविडेंस एक्ट की तैयारी अच्छे से कर लो। कहीं अगर बोला भी जाए कि अच्छा, अरे भाई ये तो हम सबसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है कि 4 सवाल पूछा उसमें से 4 नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है किसी के भी साथ। लेकिन तब जब अगर पैनल पूछे आपसे कि अच्छा तुम बताओ भाई कि तुमसे क्या पूछ लें, तो एक एरिया ऐसा तैयार होना चाहिए जिसमें उत्तर अच्छा देने की संभावना अधिक हो। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि जो भी आपका पसंदीदा हो, एक तो वो अच्छे से पढ़ लो। प्लस एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट है जो सबको आना चाहिए, ऐसा सब लोग मानते हैं कि एविडेंस एक्ट में गलती नहीं होना चाहिए। तो एक एविडेंस एक्ट का रिवीजन कर लो। और अगर हम लोग ऐसे बोल के छोड़ देंगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि खुद व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है कि हम कब एरोगेंट या एग्रेशन में हो गए। तो हम उदाहरण देके बता देते हैं। जब सर बात कर रहे थे कि कोई दुर्घटना होगी तो क्या क्या होगा, तो आपने 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया। जब आप बता चुके तब सर ने बोला और एफआईआर, तो आपने बोला एफआईआर तो होगा ही ना। तो इंटरव्यू देने तुम आए हो कि हम आए हैं इंटरव्यू देने, होगा ही ना का क्या मतलब है? उसका जवाब था कि सॉरी सर मैं एफआईआर बोलना भूल गया। होगा ही ना क्या होता है जी? समझ गए ना, उदाहरण देना जरूरी रहता है, तब समझ में आता है आदमी को। तो ये हम सब लोगों ने, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जब भाई कोई बार बार टोके तो आदमी उसको सुधार करे। तो हम उस धर्म का पालन कर रहे हैं कि हम आपको टोक रहे हैं क्योंकि आप हमारे भरोसे तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक अभिभावक के तौर पर हमारा धर्म है कि हम आपको छोटी से छोटी चीजें भी सही कराएं जिससे सामने वाला कोई ऑफेंड हो सकता है। ठीक है, हम तो आपको सुझाव, इंटरव्यू में कोई अंदर अंदर ऑफेंड हो जाएगा तो अपने को पता भी नहीं चलेगा यार, नंबर काट लेगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बताते चले। तो बहुत शांति से एकदम से बात करना है कि हमारे मुंह से भाई कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे कोई चाह कर भी वो नहीं ले पावे, जाने में भी। तो शांति से एकदम उत्तर दे देना है। जब कोई चीज सामने वाला कोई इनपुट दे या आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना, आपको काटना चाहे, तो आप बहुत बहुत विनम्रता से उसको सुनिए और फिर बोले कि हाँ सर। अगर आपको अपील करता है तो बोले कि सर हाँ ये बात है, मैं भूल गया था सर,
बस इतने में ही काम हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे आदमी सुधार करता है। जब आप और उच्च नौकरियों में जाएंगे तो वहां जो आपका सर्कल होगा उसमें और सुधार करने का मौका मिलेगा। ऐसे ही तो आदमी सीखता है। तो निराश कहीं से भी होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ तक पहुंचे इतना मेहनत करके, थोड़ा सा और जोर लगाना है बस। तो एक तो जो है वही कुंजी जो सर बोलते हैं, कुंजी वाला आप रिवीजन कर लीजिए। छोटी छोटी किताबें जो आती हैं उनसे रिवीजन कर लीजिए और एविडेंस एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इतना में मुझे लगता है कि आप अच्छा कर लीजिए। कब है इंटरव्यू आपका? 6 अक्टूबर को सर। चलो अभी तो समय है, अभी तो समय है आपके। करिए, मेहनत करिए ना, अच्छा करिए। क्या है ना शशिकांत, जैसे बोला कोई आदमी क्राइम हो गया क्या करोगे, एफआईआर तो उसका इसेंशियल पार्ट हो गया ना। आप कॉमन सेंस लैक कर गए उस समय। इफ आई विल से मोर देन नॉलेज यू लैक कॉमन सेंस दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप तीनों आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट का अमेंडमेंट नहीं बता पाते हो तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया सकता, क्योंकि आपकी नौकरी ही वही है, आपको उसी में काम करना है। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस यही आप करना, बाकी कुछ करना नहीं पूरी लाइफ आपको। तो बेटा थोड़ा से आप लोग सब लोग पेपर पढ़ने की कोशिश जरूर करो। अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू भैया। अब